Good morning, students, and welcome. Today we are going to start this lesson, Three Visions for India. It is 2.4, Three Visions for India. It is about Dr. APJ Abdul Kalam and uh, what did he think we should have India. उनका अपने नज़रिया क्या था एक इंडिया की तरफ, वो इंडिया को किस तरह देखना चाहते थे इन भविष्य, इन फ्यूचर, व्हाट sorts of India they were he was looking for. तो उस बारे में इन्होंने इसमें थोड़ा मेंशन किया है, दैट इज थ्री विजन्स फॉर इंडिया. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडिया's integrated guided missile program, states three visions for India based on the achievements and the progress that he has witnessed in the history of the nations and during his own career as a missile scientist. Dr. Kalam's three visions for India are freedom, development, and standing up. The focus of his presentation is on the developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. So what it is said in this paragraph, Dr. APJ Abdul Kalam said that his three vision for India is based on the achievement, जो भी achievement right from the freedom, independence we got till up to जो उन्होंने achieve, we Indians have achieved and the progress we had made. He says that he has a three vision for India, that is the freedom, development, and standing up. Dr. APJ Abdul Kalam is called as a missile man also because he is related with the missile. He is a scientist. He is also called as the father of the India's integrated guided missile program because he is the father of that, because उनका एक missiles के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे achievement. is a scientist as well as I told you earlier. So he is called as the father of India's integrated guided missile program. The focus of the presentation is on the developing India to its fullest potential. The focus मतलब जो अपना केंद्र कहाँ पे होना चाहिए, आपकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे, प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन द फुलेस्ट पोटेंशियल, मतलब इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए उसके अंदर पूरे अपने लोगों को क्या अपनी पोटेंशियल डालनी है, पूरी अपनी ताकत लगाना है ताकि वो एक डेवलपिंग कंट्री माने जा सके. विथ स्टैंडिंग अप द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ फुल्ली वैलिडेटी सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर द अचीवमेंट दैट हैव बीन ऑब्टेन इन द मॉडर्न टाइम्स. और ये भी चाहते हैं कि लोगों के नज़र में, मतलब बाहर के देश के जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के नज़र में भी एक इंडिया एक अपना इंडिया का एक अपना एक रुतबा हो, एक अपनी एक पहचान हो, एक सम्मान हो लोगों के नज़रिए में इन फ्रॉम द हाई ऑफ द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो. तो वो ये चाहते थे कि इंडिया को एक पहचान मिले ताकि बाहर के देश के लोग भी एक इंडिया को एक सम्मान की नज़र से देखे, एक रिस्पेक्ट उनके लिए हो, फीलिंग हो, और इनके डेवलपमेंट जो इंडिया बना है, जो पहले से लेके अभी तक जो उन्होंने हासिल किए, दैट शुड बी known to every part of the world. If we are not free, no one will respect us. I have three visions for India. In 3,000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our mind. From Alexander onwards, the Greeks, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture, their history, nor tried to force our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. Now what he is telling, वो इस पैराग्राफ में क्या बताना चाहते? If we are not free, no one will respect us. अगर हमारे पास अपना स्वाभिमान नहीं, हम अपने तरफ से अपने मुताबिक नहीं रहते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं, तो क्या अपने को कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा. तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी कि हम फ्री हो, आज़ाद हो, दूसरे की बंदिशों से नहीं जुड़े हो,
दूसरे के कहने के पर ना चलना पड़े हमें. We should have our self respect. That is what he is mentioning. What he is saying, I have 3 visions for India. उनका अपना 3 नज़रिया है भारत की तरफ देखने का, जिस तरह वो चाहते हैं कि हमारा भारत हो. In 3000 years of our history, people all over the world have come and invaded us. मतलब 3000 सालों से जो चलता आ रहा है कि इतिहास में कि अपने ऊपर हर एक कंट्री ने अपने पर ये अधिकार जमा है. जैसे यू नो दैट ग्रीक्स केम हियर, पोर्चुगीज आए, ब्रिटिश भी रूल कर चुके हैं, फ्रेंच आए थे, डच आए थे. ये लोग सब अपने इंडिया में आके इन्वेड किया और अपने पर उन्होंने अपना राज्य चलाया अपने. तो ऑल ऑफ दम केम एंड लूटेड अस. सब आके क्या किया, हमको लूट के चले गए. एंड टुक ओवर व्हाट वाज हवर्स. जो भी अपना था वो सब वो लूट के चले गए. Yet we have not done this to any other nation. भले कोई और देशों ने अपने पर आके लूट मचाई हो, अपना सारा ले गए, लेकिन हमने किसी के पर ऐसे व्यवहार किसी के साथ नहीं किया, किसी भी देश के साथ नहीं किया. We have not conquered anyone. हमने किसी के पर अपना अधिकार नहीं जमाया किसी और देश के पर. We have not grabbed their land, their culture and their history. हमने किसी का ज़मीन नहीं हत्या है, किसी का कल्चर्स या किसी का इतिहास को हमने नहीं रोंदा है. Nor try to force our way of life to them. Not force अपना भी हम लोग ने अपना अधिकार नहीं जमाया किसी और के लाइफ के ऊपर. That was he saying. Because we respect the freedom of others. Why? Because we respect the freedom. We all think that everybody has their life to lead it, and we should not force anybody. We should not put our what do you say? We should not dominate others. अपने कहने के पर उनको चलना चाहिए ऐसा हमें नहीं लगता. हमने सबका फीलिंग्स को, सबकी फ्रीडम को हमने रिस्पेक्ट किया, इसीलिए हमने किसी का लैंड को हत्याया नहीं, किसी के पर ज़बरदस्ती नहीं की, उनको अपनी तरीके से जीने दिया. जबकि अपने पर क्या है, बहुत बाहर के देश के लोग वगैरह आए थे, ग्रीक से लोग आए थे, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ऑल ऑफ दम केम एंड लूटेड अस. अपने पास बहुत, हमें सोने की चिड़िया माना जाता था. एंड ऑल दिस इन्वेडर्स केम एंड लूटेड अस एंड वी हैव लॉस्ट ऑल द थिंग्स. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. वी शुड बी फ्री सो दैट वी विल गेन रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम. इसके लिए वो बोलते हैं, इसके लिए मेरे नज़रिया है कि अब में सबसे फ्री होना चाहिए. दैट वी शुड हैव अ फ्रीडम. I believe that India had its first vision of freedom in 1857. तो उन्हें क्या लगता है, उनकी नज़र से उनको इंडिया को फर्स्ट फ्रीडम मिला है 1857 में. When we started the War of Independence. 1857 में हम लोग ने War of Independence स्टार्ट किए थे. All over the India, all the peoples, even Maharashtra, South, North and all people came to know that the Britishers are exploiting us. So they all stood up, all the national leaders stood up, came forward to throw out the Britishers from the India. तो एक पहला कदम 1857 में उठाया गया था. दैट इज़ अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये सेट दैट मेरा पहला विजन ये था फ्रीडम की तरफ. दैट वाज इन 1857. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. तो बोलते जो फ्रीडम के लिए हमने लड़े हैं, if we are not going to nurture it, nurture मतलब अगर हम उसको संभाल नहीं रहे हो, उसके ठीक से ध्यान नहीं दे रहे या सुरक्षा नहीं कर रहे, तो क्या है, इसको अपना ये है कि अपने को वो बनाए रखना है, फ्रीडम को बनाए रखना है. वी शुड नर्चर इट. अगर हम नहीं कर पाए तो कोई भी इसी तरह कोई भी आके आपका ज़मीन हत्या लेगा, आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा, अपनी हुकूमत आजमाएगा. तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी. वी मस्ट बी फ्री. इफ़ वी आर नॉट फ्री, नोबडी विल रेस्पेक्ट अस. माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट. तो उनका दूसरा नज़रिया क्या है भारत की तरफ, उनका सोच है डेवलपमेंट. फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन. इट इज़ time to see ourselves as a developed nation. अभी बोलते फ्रॉम 50 years we have seen as a developing nation. मतलब
हमारा सुधारना हो रहा है। हम लोग सुधरे हुए नेशंस में नहीं गिने जाते, जैसे अमेरिका है, यूएस, रशिया जो है कि दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज, जापान एंड ऑल, वो डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन हम लोगों के पर अभी भी एक टैग लगा हुआ है कि हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ रहे हैं, मतलब अभी भी हमारे में डेवलपमेंट कंप्लीट होने बाकी है। तो वो नहीं चाहते कि हम एक डेवलपिंग नेशंस की तरह जाने जाए, वो चाहते हैं कि हम एक डेवलप्ड नेशन की तरह, मतलब स्वावलंबी हो, मतलब ये दे शुड बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रेस्पेक्ट, एवरीथिंग शुड बी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए। It is time to see ourselves as a developed nation. We are among the top 5 nations of the world in terms of the gross domestic product. तो वी आर अमंग द 5 नेशन, देखो हमारे 5 नेशंस में गिनती होती है इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओके, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी अपने देश में जो उत्पादन होता है उसके पास, उसके हिसाब से जाने जाओ तो टॉप 5 नेशन में हमारी गिनती होती है। We have 10% growth we have 10% growth rate in most areas. अपना इधर क्या है, 10% ग्रोथ है, हर एक क्षेत्र में 10% ये ग्रोथ है हर एक में। Our poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today. Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation. आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, अपने पॉवर्टी लेवल्स जो पहले थे, गरीबी की थी, वो अभी गिरते आ रहा है। एंड आवर अचीवमेंट्स आर बीन ग्लोबली रिकॉग्नाइज, हमने जो भी अचीवमेंट किया राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो भी अचीवमेंट हुआ है वो लोग ओवरऑल वर्ल्ड में पहचान रहे हैं। एट वी लैक द सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस, इसके बावजूद भी हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी है टू सी आवर सेल्फ एज ए डेवलप्ड नेशन। तो वो बोलते हैं हमारे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये हो रहा है कि हम अभी भी डेवलपिंग नेशन में माने जाते हैं, ना कि डेवलप्ड नेशंस में। जबकि 5 नेशनों में हमारी गिनती होती है, क्योंकि हम लोग उतने अच्छे प्रोडक्शंस कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस, मतलब जो अपने घरेलू, अपने इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड, व्हाटएवर, इन ऐसे इस प्रोडक्ट्स में जो घर में बनता है वो सब चीज़ें, घर में मीन्स इन आवर इंडिया, ओके, हम बाहर से नहीं ला रहे, कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम अपने देश में जो भी चीज़ बनता है वो इतना काफ़ी है कि हम इसकी पहचान से हम 5 बड़े देशों के इस गिनती के अंदर आते हैं। इसके बावजूद भी हमारे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड इज इन दैट राइट, तो बोलता है हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, सेल्फ एश्योर्ड भी होना चाहिए, मतलब वी शुड बी एश्योर्ड दैट वी आर ए कैपेबल ऑफ डूइंग सो एवरीथिंग, हम खुद से कर सकते हैं सब चीज़ें। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, आई हैव थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रेस्पेक्ट इट, only strength respects strength, we must be strong not only as a military power but also economic power, both must go hand in hand. What here he is trying to say, I have a third vision that too India must stand up to the world or no one will respect us, मतलब दुनिया में we should be able to stand up in the world, लोगों के सामने, दुनिया के सामने हमें खड़ा रहना तो आना चाहिए, तभी हम को दूसरे लोग हमें सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अगर हमारे पास ताकत है, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो, हमारे में ताकत है, कोई हमसे लड़ नहीं सकते, तब भी कोई सामने वाला हमें सम्मान देगा या रिस्पेक्ट देगा। तो ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली हैज़ ए मिलिट्री पावर बट ऑल्सो इकोनॉमिक पावर, सिर्फ मिलिट्री पावर में ही हमारे में स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक परिस्थिति भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक पावर बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, हमारे सेना भी उतनी ही ये है पावरफुल होनी चाहिए और उतनी ही हमारे आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग हमें सम्मान दे सके, रिस्पेक्ट दे सके और हम लोगों की नज़र में उठ सके। Okay, here I am stopping.
In the next lecture, I will be continuing the remaining part of the lessons. So I hope you understood what is the vision, what is the three visions of APJ Abdul Kalam towards our India. That is the freedom, development and standing up. He was known as a missile man, a father of the India's integrated guided missile program. His thinking was that if we are not free, no one will respect us. Means we should not depend on others. We should be self-reliant so that others should respect us. So that is what this is the thing he said in the. This speech was given by him at IIT Hyderabad on 25th May 2011. Okay, he outlined the three visions for his motherland. Means he said we should have a three vision for our land, that is our India, and pleads the Indian people that we should all be get involved in building up our nation. अपना देश को बनाए रखने के लिए, चार लोगों की नज़र में ऊंचा उठाने के लिए हर एक इंसान को सामने आना चाहिए, तब जाके अपने देश एक डेवलप नेशन में गिनती होगी और बाकी के देश हमें रेस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे. This was a speech given in IIT Hyderabad by him. Okay, and it is all the lesson में जो ये पार्ट एक्सप्लेन किए गए हमें, वो उसी स्पीच के एक हिस्सा है जो उन्होंने लोगों को बताई थी कि किस तरह हम अपने देश को आगे ला सकते हैं, किस तरह हमें लोगों के बाकी लोगों की रिस्पेक्ट हमें मिल सकती है. हमें अपने देश को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट ऐसा बनाना है, किसी के पर निर्भर नहीं रहना है किसी चीज़ के लिए. जो भी अपने इधर होता है काफ़ी हद तक काफ़ी हो जाता है हमारे देश के लिए, किसी और के पर हमें डिपेंड होना नहीं पड़े. बट अपने में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग उसका ये कर सके, लोगों को बता सके. दैट इज़ द वन थिंग वी लैक इन दैट. सो वी शुड हैव ऑलवेज हैव ए कॉन्फिडेंस इन ourselves so that we can present ourselves as a developed nations and gain the respect from other parts of the world. Bye. See you in the next lecture.